गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन द लास्ट लेक्चर हमने दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, दैट इज एटॉमिक रेडियस एंड आयनाइजेशन एनर्जी। सो आज के लेक्चर में हम दो और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वन बाय वन हम दोनों को डील करेंगे। तो पहली हमारी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सी, फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या मतलब समझ आ रहा है हमें। एंथैल्पी इज द एनर्जी चेंज and the enthalpy change taking place when there is an addition of electron gain। जब एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो जो एनर्जी चेंज होगी दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। डेल्टा इज फॉर चेंज, क्लियर। डेल्टा EGH, EG stands for electron gain enthalpy, H is for enthalpy। So अगर हम एक इसका एग्जांपल लें, क्लोरीन plus electron in gaseous state gains an electron to form Cl negative, clear। So the energy change taking place in this process is known as electron gain enthalpy, and that comes out to be in this case minus 348 kilojoule per mole। So you can see here the reaction is exothermic। So whenever the electron is adding to a neutral isolated gaseous atom, it releases the energy, but not in all the cases। There are some cases, there are few elements in which the electron gain enthalpy is positive। Like for example, if I say noble gases have positive electron gain enthalpy, they have positive electron gain enthalpy, they have positive electron gain enthalpy। Why? Because their octet is complete, they do not need an electron। And same here case of nitrogen, beryllium, magnesium, they also have the positive electron gain enthalpy because they have the stable configuration। So always remember electron gain enthalpy for most of the elements is negative। and अगर हम बात करें पूरे periodic table में, most negative electron gain enthalpy will be of group 17। Why? Because group 17 is your halogen family and all need one electron to complete the octet, so they will have the maximum electron gain enthalpy in negative, because whenever we are having the electron gain enthalpy, it will be usually in terms of negative, it will be the energy released। but कुछ केसेस में पॉजिटिव होती है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया नोबल गैसेस एंड फ्यू एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ड्यू टू देयर स्टेबल configuration। so this was a little bit about electron gain enthalpy, its definition। now let's come to the units। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो द यूनिट्स आर किलोजूल पर मोल और किलोकैल पर मोल। These are the common units in which electron gain enthalpy is noted। Like in case of chlorine, it is minus 348 kilojoule per mole। Now let's come to another thing। What are the factors? What are the factors on which electron gain enthalpy will depend? ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करेगी, ठीक है। सो अगर हम फैक्टर्स की बात करें, सो फैक्टर्स में पहला फैक्टर मेरे पास आता है दैट इज साइज। सिंपल सा है, साइज। मोर इज द साइज, सी मोर इज द साइज, मोर इज द साइज, लेसर विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑब्वियसली बात है क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी। सो साइज एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम कह सकते हैं जैसे हम अलोंग द पीरियड जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो एटम विल हैव मोर टेंडेंसी टू ऐड इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा केस है, अगर हम बात करें लाइक इफ वी टॉक अबाउट कार्बन एंड इफ वी टॉक अबाउट फ्लोरीन, so fluorine का size छोटा है, as we move along the periods the size decreases। so if the size is small, more will be the nuclear charge, more will be the tendency to add electron, so fluorine will have more negative electron gain enthalpy। so always remember size and electron gain enthalpy are inversely proportional, clear। second is the nuclear charge। अगर हम nuclear charge की बात करें, that has a direct, more is the nuclear charge, more is the electron gain enthalpy। and whenever we are talking electron gain enthalpy, it is in negative terms, clear। so more is the nuclear charge, more is the electron gain enthalpy, clear। third आ जाए
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैंने बात की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करेगा. लाइक फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस हैव फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, सो दे हैव अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, whereas in case of group 15 only nitrogen is having a positive. Why? Due to the small size and half filled. Clear? Whereas in group 2 there are two elements like beryllium and magnesium, again due to small size and fully filled 2s orbital. That's why. So these are the few factors on which electron gain enthalpy depends. Now let's see, हमने last lecture में अपने किया था successive ionization एनर्जी, वैसे ही इसके अंदर हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं. सो अब हम देखेंगे अगर हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है. विल सी दैट बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एग्जामिनर हमेशा पूछता है. एक कॉमन क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा. जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सी ऑक्सीजन की फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है that is around minus 141 kilojoule per mole, first electron gain enthalpy. So it is adding an electron to form O negative, the energy released is minus 141. And if we see the second electron gain enthalpy, so it's positive around 780 kilojoule. Why it's positive? See, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, it forms a anion. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हम अनायन में ऐड कर रहे हैं. दिस इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज, दिस इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज. नेगेटिव चार्ज विल रिपेल, but in order to add electron we have to supply energy. So the first process here is exothermic, this will be your endothermic. Always remember. Clear? So this was your addition of subsequent electron to the neutral atom, then to the anion. So let's talk about the periodic trend. See, अगर हम इसका periodic trend की बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, periodic trend is not regular. जैसे मैंने आपको कहा along the period, अगर हम बात करें along the period, अगर हम एक बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करती है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इंक्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यूज बढ़ती हैं, ठीक है ना. सो इट इंक्रीजेस, बट डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है? डिक्रीज करती है. इट डिक्रीजेस, इट इंक्रीजेस, बट देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड. लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया, अगर हम कार्बन के बाद नाइट्रोजन पे मूव कर रहे हैं तो नाइट्रोजन की क्या आ जाती है? पॉजिटिव. व्हाई? ड्यू टू द हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन. सो ऑलवेज रिमेंबर, while moving along the period and down the group, the electron gain enthalpy values are not regular. They are not following a regular trend. So this was about electron gain enthalpy. इस पे मैं एक क्वेश्चन लूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सी, अगर हम बात करते हैं ग्रुप 17 की, फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है. सो अगर मैं कहूं डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज. साइज अगर इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर देगी. इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव, ऑलवेज आई एम रेफरिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव. क्लियर? सो आउट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन वी शुड हैव अ हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. द राइट आंसर शुड बी फ्लोरीन, बिकॉज इट्स साइज इज स्मॉलर, it will readily add an electron, but the correct answer is chlorine. Why? Reason being, see, here the configuration is 1s2 2s2 2p5. Clear? And here the configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. Now the electron to be added to this is in 2p, which is a compact subshell. क्या है? Compact subshell. Due to that compact subshell, it faces interelectronic repulsion. But in this case, 3p is bigger, so it readily adds an electron. ये क्या करता है? It readily adds an electron. So we can say the electron gain enthalpy, as from the experimental values also, it is having value of minus 348 kilojoule per mole, and it is having the value of 28 kilojoule per mole. So you can see there is lot of difference in the values. So the electron gain enthalpy of chlorine is more as compared to electron gain enthalpy of fluorine. Always remember in terms of negative. नेगेटिव में ज्यादा है, और जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन की ऐड होने की. क्लियर? नाउ
दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर, हमने किया। अच्छा, कई बुक्स में एक और टर्म यूज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Don't get confused by electron affinity and electron gain enthalpy. See, electron affinity भी basically it's an attraction of electron. एटम जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, दैट इज आल्सो गिवन बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन दोनों में रिलेशन है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी पॉजिटिव बाय कन्वेंशन। क्लियर? सो अगर इनमें मैं रिलेशन लिखूं, सो दैट रिलेशन इज EgH is equal to electron affinity minus 5/2 RT. R is a gas constant, T is the temperature. So this is a relation. If this is negative, then electron affinity will be positive. That's it. Clear? So let's come to the next, electronegativity. हम next अपने टॉपिक पे आते हैं, electronegativity. ठीक है? So let's talk about electronegativity. Basically electronegativity है क्या? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम काई से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय काई। बेसिकली है क्या? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ बॉन्डेड स्टेट। अभी हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी, वो आइसोलेटेड एटम की होती है, ये बॉन्डेड स्टेट में होती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक एग्जांपल लेते हैं HF। वी आर हैविंग HF। HF is having a normal covalent bond. Clear? Now this shared pair of electron will be more attracted toward fluorine due to its small size, and it will acquire a negative charge, partial negative charge, and in comparison to fluorine this will acquire a positive charge. So again I will repeat the definition. It is the tendency of an atom to attract the shared pair towards itself in the bonded state. So electron negativity is in bonded state. Clear? Now अगर हम electron negativity की बात करें, हम इसको measure कैसे करते हैं? Measure it is measured on Pauling scale. Pauling scale पे कुछ values दी जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें Pauling scale पे एक फॉर्मूला भी है, Chi A minus Chi B is equal to 0.208 delta E. ठीक है? This is in किलोकैल पर मोल। एक और वैल्यू होती है, that is Chi A minus Chi B is equal to 0.102. That is again किलोजूल पर मोल। ये फॉर्मूला किलोजूल पर मोल में है और ये है किलोकैल पर मोल में। So this is the Pauling scale to note the electron negativity. Clear? यहाँ पर जो E है, E भी मैं बताना चाहूंगा, E is equal to EAB minus half EAA plus EBB, energies, bond energies. Clear? You can put and point out if one of the electron negativity is known. This is your Pauling scale. So Pauling scale पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी is 4. सबसे पूरे periodic table में the most electronegative is फ्लोरीन। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी Pauling scale पे 4.0 है, then followed by oxygen 3.5, then followed by nitrogen that is 3, then carbon 2.5, so on. These are the few electronegative elements. ठीक है? कॉमन एक क्वेश्चन आता है, अरेंज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन इन ऑर्डर ऑफ दिस। तो Pauling स्केल पे आप वैल्यूज कुछ याद रख सकते हैं। ठीक है? सो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का फैक्टर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स जिन पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिपेंड करती है? देखिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी साइज पे तो डिपेंड करेगी। smaller is the size, larger will be the electron negativity. जितना smaller size होगा उतनी electronegativity क्या होगी? ज्यादा होगी। उतनी electronegativity क्या होगी? ज्यादा होगी। न्यूक्लियर चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट, हम ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेट, सो मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हमारे पास है सपोज Fe और Fe पॉजिटिव। नाउ न्यूक्लियर चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे ज्यादा है? ऑब्वियस बात है Fe पॉजिटिव। सो दिस विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज इसका साइज छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। क्लियर? थर्ड, अगर हम एक और देखें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। हाइब्रिडाइजेशन में अभी आपको हमने कवर नहीं किया है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिक टाइप हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, sp2, sp3। ठीक है? अब अगर हम इसमें देखें, इसके अंदर s कैरेक्टर कितना है? 50%।
इसमें एस कैरेक्टर कितना है 33%, इसमें एस कैरेक्टर कितना है 25%. सो मोर इज द एस कैरेक्टर, make it a line, more is the s character, more is the electron negativity. Why it's so? Because s is closer to nucleus, so it will feel more attraction, it will feel more attraction. So always remember these are the few factors. Now if we come to discuss trend of electron negativity along the period and down the group. अगर हम along the period बात करते हैं regularly decrease करती है, ठीक है, but अगर down the group करेंगे थोड़ा सा irregular trend है, ठीक है. जैसे कि अगर हम बात करें along the period, साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काय से रिप्रेजेंट करती है, इंक्रीज करेगी. डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. क्लियर. चलो लेट्स सी, एक क्वेश्चन करते हैं. जैसे कि अभी हमने बात की, वी आर हैविंग सपोज लिथियम इज देयर, ठीक है, देन नाइट्रोजन इज देयर, ऑक्सीजन इज देयर, एंड we are having carbon. We have to arrange these elements in order of decreasing electron negativity. अभी हमने देखा था कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और लिथियम, इन सब में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन का साइज क्या है, स्मॉलर है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, सो ऑक्सीजन की हायर होगी, देन नाइट्रोजन, देन फॉलोड बाय कार्बन, वेयरएज लिथियम तो मेटल है, सो लिथियम की लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी. सो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं. सो आज हमने दो प्रॉपर्टीज की हैं, अब हम इनमें लास्टली कुछ डिफरेंस देखेंगे. फर्स्ट इज योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हियर इज योर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रिप्रेजेंटेड बाय chi. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज occurs in isolated atoms, like for example Cl plus electron give rise to Cl negative, the energy released. For few elements it is absorbed. Clear. Chi is always in bonded state. Chi किसमें होती है, bonded state. Clear. ये पहला डिफरेंस हो गया. दूसरा डिफरेंस अगर हम बात करें, this is the experimental value. experimental value होती है, it's a just numeric value, like Pauling scale पे हमने दी हुई है ना, that's it. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, जैसे कि अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है, इट इज इररेगुलर इन पीरियड्स एंड ग्रुप ड्यू टू वेरियस एक्सेप्शंस. इररेगुलर इन पीरियड एंड ग्रुप. क्लियर. और अगर हम इसकी बात करें, रेगुलर ट्रेंड, रेगुलर इन पीरियड बट irregular in group. So these were few differences. So just revise. Group the periodic properties, very important according to CBSE and competitions. Thanks.